आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासर अली। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद हूं मैं और आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता रखी गई है। आपको बता दें कि कल यानी 22 जून को एक स्पेशल कन्वोकेशन जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में है, जिसमें 211 गोल्ड मेडल्स और 265 जो पीएचडी डिग्रीज़ है स्टूडेंट्स को जो है वो अवार्ड की जाएंगी। और इसी अवसर पर जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री जगदीप धनखड़ जी जो है वो चीफ गेस्ट होंगे, जबकि मनोज सिन्हा जी भी जो है वो जम्मू कश्मीर के जो यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो भी जो है वो एज अ चांसलर यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आज इसी सिलसिले को लेकर के एक प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें जो वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी अपनी कुछ स्पेशल अचीवमेंट्स और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से नए प्रोग्राम्स और कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं या किए जाएंगे उन पर जो है वो रोशनी डालेंगे। तफसील जानने के लिए देखिए ये प्रेस वार्ता। ये स्पेशल कन्वोकेशन जम्मू विश्वविद्यालय करा रहा है कल 22 जून को, जिसमें ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is going to be the chief guest, and the convocation would be presided by our honorable Lieutenant Governor, who is the Chancellor of the University of Jammu. This is a special convocation in which the medals, gold medals for the students of 2016, 2017, 2018 and 2019, तो ये गोल्ड मेडल्स उन बच्चों को दिए जाएंगे। और पीएचडी जो अवार्ड है वो 2017, 2018, 2019 ये 3 साल का। अभी भी 2020 और 2021 का हम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही थी। यह कन्वोकेशन कुल मिलाकर के मुझे लगता है 4 घंटे का कार्यक्रम होगा, तो इससे ज़्यादा संभव नहीं था, और इसलिए एक और स्पेशल कन्वोकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी कराएगा, फिर एक रेगुलर कन्वोकेशन कराएगा 2022-23 के लिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स 2005 हैं, सॉरी 265 पीएचडी स्टूडेंट्स, एंड मेडल्स कितने हैं? 211 गोल्ड मेडल्स हैं। मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय का कन्वोकेशन का यह कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। किन्हीं कारणों से यह नहीं हो पाया। प्रयास होगा कि विश्वविद्यालय रेगुलर बेसिस पर यह कन्वोकेशन करे। लेकिन मैं जो आपसे आज बातचीत करना चाहता था, और वो था कन्वोकेशन तो एक माध्यम था, लेकिन आपके ध्यान में लाने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम in the University of Jammu, a Center for Skill Innovation, Incubation and Entrepreneurship Development that is established to promote the skills incubation, innovation and entrepreneurship. The research fund that has been created and that has already been distributed among the faculty. For the first time, the university has introduced a transdisciplinary research scheme. So the idea is that the mentors from different streams and the students from different streams, they would join their hand together, right, to address the challenge of the society. तो एक प्रोजेक्ट जिसमें कि ट्रांसडिसिप्लिनरी मोड में सोसाइटल चैलेंज जम्मू रीजन का, उसको हम कैसे एड्रेस करें, इसके लिए इन लाइन ऑफ NEP 2020 the university has approved the policy of inclusion of credits. So credits would be given to the students participating in NCC, NSS, sports and other cultural activities. There is a paradigm shift in our policy of appointing visiting faculty. I have shared with you in earlier also that a person who is having the experiential learning in particular field may not be having any degree, may be appointed as a visiting faculty based on experiential learning in the University of Jammu. So a farmer, an engineer, retired engineer, bureaucrat, army personnel,
So they can be, or a person from the civil society, or a person from the Patrakarita may be appointed as a visiting faculty in the University of Jammu. When I am saying a person from Patrakarita may not be having the formal degree in the journalism, doesn't matter, but the person is having the experiences in that particular field. So that I am saying the university has taken initiative in sync with the Honorable Prime Minister call, lab to land and land to lab. So our research should not be restricted to the lab, it should be applicable in the field also. इसको ध्यान में रख करके है. We have created the Gandhian Center for Peace and Conflict Studies, और एक एडवर्टीजमेंट उसका आ चुका है कि अगर गांधी आज जिंदा होते और स्मार्ट आश्रम की परिकल्पना करते तो स्मार्ट आश्रम कैसा होता, और उस पर हम काम कर रहे हैं. तो गांधी के विचारों को लेकर के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से हम कैसे अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें. अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन डोगरी ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ हिंदी ये ऑलरेडी इसकी पोस्ट आ चुकी है डायरेक्टर की. अभी प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव जी मेरे साथ गए थे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ऑफ आर्मी, इनके साथ एक एमओयू हुआ है. उनकी जो फैकल्टी है मतलब ऑफिसर्स जवान, उनकी ट्रेनिंग के लिए, और हमारे स्टूडेंट्स को वो ट्रेनिंग देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में. तो एक हमारा एमओयू हुआ है. एंड आई थिंक ये भी एमओयू एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो उनके ऑफिसर्स हैं या जवान हैं वो फील्ड में जो काम कर रहे हैं उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को क्रेडिट में हम कैसे कन्वर्ट करें. तो सपोज करिए कि अगर उनको पीजी का कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएट, और वो 198 क्रेडिट का कोर्स होता है 2 साल का, तो 98 क्रेडिट का कोर्स है और 48 क्रेडिट्स उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के आधार पर हमने कन्वर्ट किया, और सिर्फ 50 क्रेडिट्स जो बचा है उसके लिए इनको इनरोल होना है. अभी इसरो के साथ और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और आईआईटी बॉम्बे, इसके साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं. आईआईटी बॉम्बे प्रोफेसर कवि आर्या हैज एग्रीड कि ई यंत्र लैब खोलने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी में. ई यंत्र लैब क्या है? रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने का. तो हम जो स्किल्स इनोवेशन सेंटर है उसके तहत एक ई यंत्र लैब रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए खोलने जा रहे हैं. आईआईटी बंगलोर और इसरो ये भी तैयार हो गए हैं हमारे फैकल्टी को ट्रेनिंग देने के लिए और हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को भी मेंटरिंग करने के लिए. नॉन कॉलेजिएट वीमेन एजुकेशन बोर्ड ये इस्टेब्लिश हो गया, और इसका पर्पज है जस्ट टू एम्पावर दी वर्किंग गर्ल्स एंड वीमेन जो काम कर रही हैं उनको रेगुलर स्टूडेंट के रूप में हम अपॉर्चुनिटी देंगे. ये क्लासेस सैटरडे और संडे को चलेंगी. इसलिए है न केवल वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, इस सब का भी ध्यान रखा जाएगा. आप परिचित हैं यूनिवर्सिटी ने 12 क्लब्स बनाए, और उन क्लब्स के माध्यम से हम अपनी जो धरोहर है, संस्कृति है, उसको मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. पहली बार एनसीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पर जम्मू यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किया गया है. माई यूथ माई प्राइड, और हर दिन खेल सबके लिए खेल, जो हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब का विजन है, इसको ध्यान में रख करके हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल जो डिपार्टमेंट है काफी मजबूती से काम कर रहा है. एंड आई एम हैप्पी टू जस्ट मेंशन दैट एन नंबर ऑफ prizes, laureates that have been brought under the leadership of Iqbal Raut ji. 2 new initiatives are ready to be launched by the University of Jammu. और आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा. एक है डिजाइन योर डिग्री 4-year अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. सो डिजाइन योर डिग्री ये एक इसी जुलाई से हम लॉन्च करने जा रहे हैं. और दूसरा कॉलेज ऑन व्हील्स, पूरी की पूरी ट्रेन जिसका नाम होगा जम्मू कश्मीर
ज्ञानोदय एक्सप्रेस, और जो पहली ट्रेन यात्रा होगी उसमें केवल बच्चियां होंगी, 1100 के आसपास बच्चियां होंगी। वो प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे जिन जिन एरिया से ट्रेन जा रही है, अहमदाबाद, बॉम्बे, गोवा, बेंगलोर, वर्धा, तो उन जगहों की समस्याएं क्या हैं या उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट वो करेंगे। 10 बच्चे, 1 मेंटोर, उनको लैपटॉप दिया जाएगा। 2 ट्रेन की 2 बोगियां लाइब्रेरी में कन्वर्ट होंगी। 1 बोगी को यंत्रा लैब जो रोबोटिक्स की ट्रेनिंग देने के लिए होगा। तो सिर्फ वो ऐसे घूमने के लिए नहीं जा रही हैं, वो पूरी की पूरी कॉलेज ऑन व्हील्स, मतलब ट्रेन चल रही है और साथ में उनकी शिक्षा भी चल रही है। वो शिक्षा जो सीधे सीधे समाज और राष्ट्र से जुड़ी हुई है। इन्हीं चीजों को गुफ्तगू करने के लिए मैं आज आप लोगों को आमंत्रित किया। सर, ये जो ट्रेन की आप बात बता रहे थे, ये कब से ये शुरू होगा? ट्रेन पहली ट्रेन यात्रा वो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में प्लान की जा रही है। इसके लिए हम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे। एडवांस में पैसा सैंक्शन किया जा चुका है। अब हम उस पर प्रोजेक्ट के माध्यम से, उसमें एक और आपको जो है जानकारी के लिए, उसमें सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं हैं, वह जम्मू कश्मीर के डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बच्चियां रहेंगी। तो डिफरेंट रीजन्स, सो जो कल्चरल एक्सचेंज उनके बीच में हो सके, रीजनल जो डिफरेंसेज हैं वो खत्म हो चुके, एक दूसरे को समझ सकें, वह भी निश्चित तौर पर है, निश्चित तौर पर। सर, कितने दिन का ये रहेगा कॉलेज ऑन व्हील्स, और क्या जिन जिन राज्यों से होकर ये ट्रेन गुजरेगी वहाँ पर क्या कुछ समय का स्टे या इंटरेक्शन लोकल कल्चर या स्टूडेंट्स के साथ रहेगा? लोकल कल्चर के बारे में तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसे ट्रेन अगर अहमदाबाद, एक तो किसी बच्चे से कुछ लिया नहीं जाएगा, सारी की सारे एक्सपेंडिचर वो IRCTC के माध्यम से हम लोग बियर करेंगे। तो ऑलरेडी हमने कहा कि जो एक प्रपोज्ड ग्रांट है वो सैंक्शन हो चुकी है। अगर कुछ एडिशनल ग्रांट की जरूरत पड़ती है तो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी उस खर्चे को उठा लेंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं। सर, डिजाइन या डिग्री की जो आपने बात की है, इसको कंप्लीट कर दें इनकी बात को हम। आपने जो प्रश्न किया कि जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे गए, तो नेवी चीफ से हम बातचीत शुरू कर दिए हैं कि वो विक्रांत को या उनका जो शिप है उस पर हमारे बच्चियों को दिखा सकें, और संभव हो तो 2 दिन का उनके डेक पर उनको लंच करा दें। उसी तरह से गोवा का शिपयार्ड हमने ऑलरेडी, जब बंगलोर जाएंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलोर के डायरेक्टर से बातचीत कर ली है कि 2 दिन के शिफ्ट में रिसर्च लैब्स और क्या क्या वहाँ हो रहा है उसके बारे में प्राइज करना। इसरो के चेयरमैन से बातचीत हो गई है। इवन हरिकोटा के लिए भी वो तैयार हो गए हैं कि 2 ग्रुप में हम हरिकोटा दिखाएंगे। हरिकोटा में हमने उनसे आग्रह किया कि वहाँ पर उतने होटल्स नहीं होंगे, तो क्या उनके स्टे का जो है IRCTC नहीं कर पाएगी तो आप कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा और स्टे का अरेंजमेंट करूंगा। सर, कहीं ना कहीं कुछ विवाद भी कई स्टेट्स में देखे जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये आपने शायद ऐड ऑन किया हो कि एक थीम के साथ इस ट्रेन को जाना चाहिए जम्मू कश्मीर से, जिसका पर्टिकुलर एक थीम हो जो जाकर एक मैसेज भाईचारे का भी दिया? मैं पहले से कुछ तय करके, होता क्या है कि अध्यापक पहले तय कर देता है टॉपिक, विषय। हम चाहते हैं कि हम तय नहीं करें, बच्चा तय करे उसकी रुचि क्या है, वो किस विषय पर अपना प्रोजेक्ट करना चाहता है। वो किसी कॉन्फ्लिक्ट इश्यू पर करना चाहता है, वो एग्रीकल्चर पर करना चाहता है, वो ट्रेड पर करना चाहता है, वो कॉमर्स पर करना चाहता है। जैसे नेवी को जा रहे हैं तो नेवी को
कुछ अगर सजेशन उसको देना है तो वो उसको तय करना है। सब्जेक्ट आ गया। मेरे कहने का तात्पर्य एक जैसे पूरी हिंदुस्तान की निगाहें जम्मू कश्मीर पर रहती हैं और एक अलग निगाह से भी जम्मू कश्मीर को देखा जाता है, क्या वैसा कोई थीम जो ओवरऑल हमारे जम्मू कश्मीर के भाईचारे को लेकर ऐसा कुछ प्लान है? वो अब इसीलिए मैंने कहा कि हम श्रीनगर यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाबा गुलाम शाह, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू और इसमें CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वो भी ज्वाइन कर रहा है। सर जो आपने तो एक जो रीजनल भाषा, धर्म, इससे हट करके एक भाईचारे की जो भावना है, एक साथ रहने का, खाने का, ट्रैवल करने का, प्रॉब्लम पर काम करने का, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा नेशनल इंटीग्रिटी के लिए और कुछ बेटर हो नहीं सकता है। सर डिजाइन और डिग्री की जो आपने बात की उसमें आपने कहा कि पहले मेरे अपनी जो पहले आपने आपको इंट्रोड्यूस कराए, उसके बाद आप सवाल पूछे। मैं नासिर अली हूँ विरासती न्यूज़पेपर से। सर जो आपने डिज़ाइन और डिग्री की बात की, ये किस टाइप की डिग्री है? ओपन एजुकेशन है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन या फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड कोई कोर्स है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। डिजाइन योर डिग्री, इसमें पहले 2 साल ये रेगुलर मोड में होगा, ये डिस्टेंस मोड में नहीं है। लेकिन आ रहे हैं तो पहले 2 साल जरूरत क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत पहले साल अगर आप छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट आपको, दूसरे साल डिप्लोमा, ये आप लोग शायद सुने होंगे कि अगर 1 साल में बच्चा छोड़ देता है तो सर्टिफिकेट की बात क्यों की गई? इसलिए की गई कि हम उसको स्किल्स से एम्पावर कर दें, ताकि उसको मुड़ करके अपने जीवन में, अगर वो डिग्री पूरा 4 साल का कोर्स नहीं भी करता तो उसको नौकरी मिल जाएगी या वो एंटरप्रेन्योर्स बन सके। तो इसको ध्यान में रख करके मैथमेटिकल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, डिजाइन, ये 8 कोर्सेज ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट मोड में होंगे। इसका मतलब कि हर पेपर में प्रोजेक्ट होगा नहीं, आपको एक प्रोजेक्ट चैलेंज के रूप में खोजना है कि इस रीजन का या नेशनल क्या चैलेंज है, और उस चैलेंज पर आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, आपका डेटा एनालिसिस, आपका डिजाइन, ये सारे कैसे फिट हो सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज उसी प्रोजेक्ट पर 2 साल आपको काम करना है, क्या इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम ह्यूमैनिटीज, कमिंग फ्रॉम कॉमर्स, कमिंग फ्रॉम सोशियोलॉजी, कमिंग फ्रॉम साइंस, इनका एक ग्रुप बनेगा ताकि वो पीयर लर्निंग एक दूसरे से हो। तो उस ढंग से 2 साल में हम इतने एम्पावर कर देंगे उसको कि उसको अगर छोड़ के भी जाता है तो मुड़ करके जॉब के लिए जो है जब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना एम्पावर रहेगा। अब 5वें सेमेस्टर में वो तय करेगा कि मुझे ह्यूमैनिटीज में ग्रेजुएशन लेना है, सोशल साइंसेज में लेना है, कॉमर्स में लेना है, साइंसेज या बीटेक करना है। उस ढंग से तब वो अपनी डिग्री को उस ढंग से वो डिजाइन करेगा। इसमें सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एल्यूमनाई या बाहर से भी कोई? वो ओपन एंट्रेंस है, ओपन एंट्रेंस। आपका भी कोई क्वेश्चन था? हो गया। House is still open. I request Nishikant Kojiria ji is the senior journalist working with the Daily Excelsior. Do you have any questions, sir? अगर बुरा न माने जो है थोड़ा आगे आ जाए तो। Avinash ji, Sumit. Sir, you have listed a number of achievements, and no doubt university has taken a lot of initiatives in the last 1 year. So, what was the apparent reason that university couldn't achieve its previous rank in NIRF ranking? राइट, ये NIRF रैंकिंग जो हुई है वो 2 साल पहले के कामों पर हुई है। इस साल
का 1 साल का जो काम है, इसको आपको 1.5 साल बाद जो NRF रैंकिंग का रिजल्ट आएगा वो वहां पता चलेगा। तो ये अभी 2 साल पहले जो काम हुआ है उसके आधार पर NRF रैंकिंग का रिजल्ट आया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन NRF रैंकिंग में कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन एक लेवल जो चला आ रहा है विगत 5-6 सालों से जम्मू यूनिवर्सिटी का 7 सालों से, वो लेवल चलता जा रहा है, उसमें कोई बहुत गिरावट नहीं है। सर इस गिरावट को बढ़ाने के लिए कोई प्रोसीजर कुछ ऐसा कोई आपने आगे कुछ गिरावट खत्म करने के लिए, गिरावट को बढ़ाने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसको कम करने के लिए जितने इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, और मुझे लगता है कि उस इनिशिएटिव्स के आधार पर, देखिए होता क्या है कि उसमें जैसे एक पॉइंट है परसेप्शन, तो हमारी परसेप्शन तो आप क्रिएट करते हैं और आप ही के माध्यम से हम अपनी परसेप्शन को ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो सहयोग मिल रहा है उससे जम्मू यूनिवर्सिटी के परसेप्शन में आई थिंक लोकली एंड नेशनली एंड इंटरनेशनली उसमें ज़बरदस्त परिवर्तन होगा और ठीक ठाक हमको मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च को लेकर के, रिसर्च इनिशिएटिव जो हमने रिसर्च ग्रांट्स की बात की, हमने ऑलरेडी फैकल्टी को दिया है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम किया गया है। तो प्रयास जारी है, रिजल्ट की कल्पना किए बिना। मेरा धर्म है प्रयास करते रहना, बाकी जो है ऊपर वाले को। सर अब मेरा भी एक सवाल सदा बुला लिया है। बड़े सारे इश्यूज पे काम कर रही है जम्मू यूनिवर्सिटी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, बड़ा कुछ प्रोड्यूस किया है। सर मेरा ये सवाल है कि जो रेडिकलाइजेशन कश्मीर में हुआ करती थी, अब उस तरह की जो चीज़ें हैं वो जम्मू में भी हो रही हैं। लोगों को इसके प्रति अवेयर करने के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस दिशा में भी कोई काम होंगे आपकी तरफ से? ठीक बात है, मैं इसका आपको जवाब दूंगा। जो है पहले NRF रैंकिंग को लेकर के जो है ये किस साल का है, 2 साल पहले का काम पर है ना, तो कोविड के समय का। लेकिन कोविड के समय अन्य यूनिवर्सिटीज का भी कि उनके लिए भी कोविड का पीरियड था। ये एक अच्छा आर्ट है जिसमें शायद हम कहीं फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सिर्फ अच्छा, अब आप आ रहे हैं आपके प्रश्न पर। देखें, यूथ को क्या चाहिए? यूथ को लगातार आपको इंगेज करना है, मीनिंगफुल इंगेजमेंट चाहिए। सिर्फ उसको क्लासरूम टीचिंग तक आप बांध के न रखें, उसको स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, डिबेट, इन सब चीज़ों में। और प्रयास हमारा ये है कि अपने यूथ को, इसीलिए हमने 12 क्लबों का निर्माण किया ताकि थ्रू आउट द ईयर एक्टिविटीज चलती रहे, यूथ इन्वॉल्व रहे। और ये प्रयास हम लगातार करते रह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि मुझे अपने विश्वविद्यालय में कोई एक दिन के लिए भी रेडिकलाइजेशन नाम की कोई चीज नहीं दिखाई पड़ी। सर मैं कैंपस के बाहर की बात कर रहा हूँ। कैंपस के बाहर की बात, अविनाश जी, मेरी रिक्वेस्ट होगी, इस डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की है इसका विषय कुछ और है। जो आप विषय उठा रहे हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलेटेड नहीं है। अगर हम इसको बाद में कहीं कभी किसी और प्लेटफॉर्म पर उठाए, मेरी ये रिक्वेस्ट होगी। सर आपने एक और स्पेशल कन्वोकेशन की बात की, वो कब प्लान की जा रही है? इसके बाद विदिन ये कल के कार्यक्रम खत्म होगा तो कल अपना अनुरोध मैं अपने चांसलर साहब के सामने रख दूंगा कि एक और मुझे स्पेशल कन्वोकेशन कराने के लिए अनुमति दें, और उसके लिए मुख्य अतिथि कौन हो सकते हैं वो भी उनके सामने मैं अपना निवेदन रखूँगा।